Hello students, today through this video I would like to tell you how to solve the summary based question in the reading test of IELTS module. So we will follow the same technique as I have mentioned in my previous videos, that we will follow a technique named as RUP method. R stands for read the questions first, U means underline the keywords and understand the demand, and P for the passage reading. So today I am going to solve summary based questions, and I have to use these synonyms and I have to use these keywords for solving question 7 to 12. Let's start with the RUP method. Complete the notes about the life cycle of Odonata below. Choose your answers from the box below and write the correct letter A to K on line 7 to 12 on your answer sheet. The eggs are laid. Eggs दिए जाते हैं किस चीज़ के ऊपर, यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है उस कीवर्ड को. द यंग ड्रैगन फ्लाई एंड डैम्स फ्लाई कॉल्ड, क्या कहा जाता है यंग ड्रैगन फ्लाई एंड डैम्स फ्लाई को? हु लिव अंडर वाटर फॉर अ फ्यू डैश, यहाँ पे टाइम के लिए बात कर रहे हैं. दे ईट स्मॉल वाटर एनिमल्स कैचिंग देयर फूड, वो अपने फूड को कैच करते हैं. कैसे वो ईट करते हैं स्मॉल वाटर एनिमल्स को? वेन दे आर ऑलमोस्ट फुली ग्रोन, जब वो फुली ग्रो हो जाते हैं. दे लीव द वाटर, वो वाटर को लीव कर जाते हैं. द अडल्ट लिव फॉर ओनली अ फ्यू, अडल्ट लिव करते हैं ओनली फ्यू. अगेन टाइम फ्रेम है यहाँ पे. दे आर स्किलफुल, वो स्किलफुल हैं किस चीज़ में? एंड कैच देयर प्रे. प्रे का मतलब यहाँ पे शिकार है. जब PREY आता है तो उसका मतलब शिकार होता है. PRAY का मतलब प्रार्थना होता है. इन द एयर, तो यहाँ पे हमारे पास ये लिस्ट ऑफ वर्ड्स है जिसको यूज करके हमें ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. ए इन द एयर, बी विद देयर लिप्स, सी टैडपोल्स, डी फ्लायर्स, ई near the water surface, F nymphs, G at the bottom of the pond, H months or years, I week or months, J swimmers, K with their wings. Moving to the passage, Odonata. Odonata is the insect order that contains dragonfly and damselfly. Their brilliant colors and delicate looking wings make them aesthetically pleasing to the human eye. In the wild, thought they are terrifying predators. Dragonflies and damselflies are named for their formidable serrated jaws which they employ to rip apart their prey. The word Odonata means tooth jaw. Dragonflies and damselfly are frequently mistaken for one another due to their similarity. Close observation reveals the differences between them. The most noticeable distinction is how they hold their wings at rest. Damselfly fold their wings back, whereas dragonflies hold their wings out to the side. Due to their proximity, dragonfly eyes appear to encompass the entire face. There is a gap between the tiny eyes of damselfly. Dragonflies are bigger, stronger and more capable flyers and then damselfly. कंपैरिजन हो रहा है ड्रैगन फ्लाई डैम फ्लाई के बारे में है. वो जब रेस्ट करते हैं वो अपने विंग्स कैसे होल्ड करते हैं, उनके तो जो है, तो ये सारा किसके बारे में अभी तक हमें इंफॉर्मेशन आई है? ड्रैगन फ्लाई एंड डैम फ्लाई के बारे में आई है. और कंपैरिजन भी हमने देख लिया है, वो स्ट्रॉन्गर हैं, वो कैपेबल हैं ज़्यादा फ्लाई करने के लिए किनके कंपैरेटिवली? डैम फ्लाई के. Consequently, they inhabit forests and areas away from water. Since they do not often fly far from the water, damselfly are typically observed along the margins of ponds and stream. तो जो damselfly हैं वो typically observe होते हैं किसके? along margin of ponds and streams के होते हैं. वो ज़्यादा दूर तक fly नहीं करते हैं from water. तो इस पैराग्राफ में अगर आपने देखा है तो ड्रैगन फ्लाई एंड डैम्सफ्लाई के बीच में कंपैरिजन देखा है. अगर आप फर्स्ट पैराग्राफ की बात करते हैं तो वहाँ पे हमने ऑडोनाटा और उसके टर्म और ड्रैगन फ्लाई और डैम्सफ्लाई के इंट्रो देखी है कि दे आर टूथ जॉ. एंड देन मूविंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. The biggest living Odonata are the Hawaiian endemic dragonfly and the Central American damselfly, each of which has 19 centimeter wingspan. तो यहाँ पे उनके wingspan की लेंथ हाईलाइट की गई है. The smallest is Labellite dragonfly, which is endemic to East Asia and has 20 millimeter wingspan. It has been shown via the discovery of fossils. Fossils करते हैं बचे हुए अंश remains जिसको कहते हैं, that dragonflies have existed over 300 million years. The biggest dragonfly fossil ever discovered belonged to the extinct Manreg moyni, which had a wingspan of 75 centimeter and lived 300 million years ago. This enormous predator क्या होता है? शिकारी. fed on the little amphibians in addition to the other insects. In a pond or stream, dragonflies and damselflies both deposit their eggs on or just below the surface of the water. तो वो कहाँ पे अपने एग्स को डिपॉजिट करते हैं? वेयर दे ले द एग्स?
ऑन और जस्ट बिनेथ द सर्फेस ऑफ द वाटर। तो यहाँ पे हमने चेक करना है क्वेश्चन नंबर 7, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया है। ऑन और जस्ट, ऑन होता है ऊपर और जस्ट बिलो, जस्ट बिनेथ मतलब नीचे, तो मतलब नज़दीक किसके सरफेस के, वाटर सरफेस के। फॉर आंसर 7 आई वुड लाइक टू मार्क माई ऑप्शन ई। तो यहाँ से मेरा क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ब्यूटीफुली सॉल्व हो गया। एक्सार लेक कहाँ पे दिए जाते हैं, नियर द वाटर सरफेस। यहाँ से आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, एग्स आर ऑन और जस्ट बिनेथ द सर्फेस ऑफ द वाटर। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यहाँ से सॉल्व हो गया। सम स्पीशीज डिपॉजिट देयर एग्स ऑन द स्टेम्स ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स, कुछ जो हैं वो स्टेम्स के ऊपर छोड़ते हैं, किसके स्टेम्स के ऊपर छोड़ते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स के। द हैचलिंग्स emerge फ्रॉम द एग्स एज निम्स, तो वो जो एमर्जेंस होती है उनकी उसे क्या कहा जाता है, निम्स कहा जाता है। हैच होने के बाद हेक्स के जो एमर्जेंस होती है उसको क्या कहते हैं, निम्स कहते हैं। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन हम देखते हैं, द यंग ड्रैगन फ्लाइज एंड डैम फ्लाइज कॉल्ड एज निम्स, तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए भी हमारा जो ऑप्शन है वो क्या निकलता है, एफ, क्योंकि एफ में क्या बात हो रही है, निम्स, और यहाँ पे उनके यंग वंस को क्या कहा जाता है, निम्स कहा जाता है, क्योंकि एग की हैचिंग जब होती है, इमर्जेंस होती है, तो जो उनके यंग वंस आते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है, निम्स के नाम से। दे ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स एंड फीड ऑन aquatic insects, tadpoles, tiny fish, and even other nymphs. They hunt by lurking at the bottom of a pond or stream, waiting for their victim to swim along. When their prey comes close, जब उनका जो prey है, शिकार है, come close, जब उसके नज़दीक आता है, they may extend a specialized lip to seize it. वो क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं अपने स्पेशलाइज लिप को, किस चीज़ के लिए, कैच करने के लिए उसको, किसको, अपने प्रे को, जब प्रे क्या है, शिकार, जब वो उनके क्लोज टू आता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, दे ईट स्मॉल वाटर एनिमल्स कैचिंग देयर फूड, कैसे करेंगे फिर, विद देयर लिप्स। तो क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर के लिए हम चेक कर सकते हैं कि किस चीज़ के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, कैसे कैच करेंगे, वो विद देयर लिप्स कह रहे हैं। तो दे ईट स्मॉल वाटर एनिमल्स कैचिंग देयर फूड, कैसे कैच करेंगे, विद देयर लिप्स। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हमारा सॉल्व हो गया है। कैसे सॉल्व हुआ है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्वेश्चन 10 के लिए विद देयर लिप्स, बी ऑप्शन यहाँ पे हम मार्क करेंगे। क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा है व्हेन देयर प्रे कम्स क्लोज दे मे एक्सटेंड अ स्पेशलाइज्ड लिप टू सीज इट। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया है। कैसे कैच करते हैं, विद कैच देयर फूड विद देयर लिप्स। तो 10 का आंसर क्या है, बी। RUP मेथड को आपने यहाँ पे देखा है गाइस कैसे ब्यूटीफुली यूज हुआ है। ज़रूरी नहीं है आपको रीडिंग में सारे क्वेश्चन सिक्वेंशियली मिल जाएंगे, समटाइम वो आपको जंबल वे में भी मिल सकते हैं। तो पहले 9 सॉल्व नहीं हुआ है, हमारा 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आगे रीड करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज दे मे एग्जिस्ट इन द स्टेट ऑफ मंथ्स और इवन ईयर्स। कैसे, स्पीशीज़ के स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, मंथ्स और इवन ईयर्स करते हैं। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि दे लिव अंडर वाटर फॉर फ्यू मंथ्स और इवन ईयर्स। तो क्या आंसर आता है, एच। क्वेश्चन नंबर 9 अब सॉल्व हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने क्या पूछा था कि वो वाटर के अंडर रहते हैं, कितने टाइम तक रहते हैं, फॉर फ्यू मंथ्स और फॉर फ्यू ईयर्स रहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 अब सॉल्व हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन 9 में हमें टाइम के बारे में पूछा गया था, जबकि क्वेश्चन 10 में पूछा गया था कि हाउ दे परफॉर्म द एक्शन, कैसे वो करते हैं, विद देयर लिप्स करते हैं, कैसे अपने फूड को कैच करते हैं। तो 10 के बाद 9 सॉल्व हुए हैं। प्लीज़ इस चीज़ पे आप फोकस करेंगे, ज़रूरी नहीं है आपको सारे आंसर्स क्या मिलेंगे, सीक्वेंस में मिलेंगे। सिमिलर वे में रीड करते हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस को। सेवरल टाइम एज द nymph matures it sheds its skin, it exits the sea and loses its skin for the final time. The adult emerges prepared to survive on land and in the air for the next several weeks or months. The adults do not survive more than 4 months. जो adults हैं वो ज़्यादातर 4 महीने से ज़्यादा survive नहीं करते हैं। Adults do not survive for more than 4 months. जो adults हैं वो 4 महीने से ज़्यादा survive नहीं करते हैं। एंड मैनी स्पीशीज बेयरली मतलब मुश्किल से लिव अ फ्यू वीक्स एज अडल्ट। बेयरली मतलब मुश्किल से ही वो कुछ वीक्स तक एज अडल्ट क्या करती है, सर्वाइव करती है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 10th है वो भी क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो भी हमारा सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन 11 की क्या डिमांड थी, द अडल्ट लिव ओनली फॉर फ्यू। अब हम चेक करेंगे फॉर फ्यू वीक्स और मंथ्स, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने नॉट मोर देन मंथ्स की बात करी है, ओनली फॉर वीक्स के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 11 क्वेश्चन के लिए जो हम मार्क करेंगे दैट इज आई। Dragonflies and damflies are highly proficient hunters due to their remarkable vision,
फ्लाइंग एबिलिटीज। जो ड्रैगन फ्लाई और डैम्स फ्लाई हैं ये प्रोफिशिएंट हंटर्स हैं, शिकारी हैं। किसकी वजह से? रिमार्केबल विजन की वजह से और अपनी फ्लाइंग एबिलिटीज। तो ये क्या है? बेसिकली फ्लायर्स हैं, इनकी फ्लाइंग एबिलिटीज की वजह से इनको जाना जाता है। देयर स्पेशलाइज्ड आइज प्रोवाइड नियरली 360 डिग्री रेंज ऑफ विजन। 360 डिग्री रेंज ऑफ विजन प्रोवाइड करता है, इसको अलाउ करता है नोटिस करने के लिए टाइनीस्ट मूवमेंट और फ्लैश ऑफ द लाइट क्रिएटेड बाय अदर फ्लाइंग इंसेक्ट्स। दे पोजेस two sets of wings that are capable of moving independently of one another। wings हैं, fly करने की बात हो रही है, vision के बारे में बात हो रही है। they provides them excellent aerial maneuverability which is essential for these animals since they capture their prey while flying। कि वो अपने प्रे को कैसे कैच करते हैं, कैसे कैप्चर करते हैं while flying। तो बेसिकली क्या थे, वो उड़ते हुए हवा में अपने जो उसको है प्रे को वो लोग कैच कर लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या है? वो फ्लायर्स हैं, वो जो इजीली कैच कर रहे हैं। और उनके किस चीज़ के बारे में बात की गई है यहाँ पे? कि उनके विजन के बारे में बात की गई है। तो दे आर स्किलफुल एंड कैच देयर प्रे इन द एयर। अगर वो एयर में कैच करें इट मीन्स दे आर स्किलफुल फ्लायर्स। तो 12 क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया, जिसको हम मार्क करेंगे डी ऑप्शन के साथ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर रीडिंग इन दिस वे। विश यू बेस्ट ऑफ लक योर एग्जाम एंड थैंक यू सो मच।